السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صاحب سمو امیر اور وینزویلا کے صدر کے درمیان خیر سگالی کے پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اپنے دورہ کاراکاس کے دوران ان پیغامات کا تبادلہ کیا۔ قطر میں آج کئی علاقوں میں خوب بادل برسے۔ فضائی رصدگاہوں کے ادارے نے حفاظتی اقدامات پر زور دیا ہے۔ اور عراق میں صدری تحریک کے پیرووں نے محمد السودانی کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار بنائے جانے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی عمارت پر قبضہ کر لیا اور پھر وہ اپنا قبضہ ختم کر کے چلے گئے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر نے آج جمہوریہ پیرو کے صدر پیڈرو کاسٹیلو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام اور جمہوریہ پیرو کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے جمہوریہ پیرو کے وزیر اعظم جناب نیبال ٹوریس فاسکیز کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام بھی روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے صدر نکولاس ماڈورو موروس ان کی حکومت اور جمہوریہ وینزویلا کے عوام کے نام سلام و تحیات کا پیغام ارسال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے کاراکاس میں وینزویلا کے صدر کے ساتھ ملاقات میں انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے خیر سگالی کا ایک پیغام نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے سپرد کیا ہے، جس میں صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطر کی مسلسل ترقی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ ملاقات میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے جمہوریہ وینزویلا بولیوار کی نائب صدر ڈاکٹر ڈیلسی روڈریگس کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر فضائی ٹرانسپورٹ، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات و تعاون، بزنس مین کے ساتھ پارٹنرشپ، خاص طور پر ایگریکلچر اور فوڈ سیکیورٹی سے متعلقہ اسٹریٹجک منصوبوں کی حوصلہ افزائی کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے مختلف دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی۔ کاراکاس میں ہی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جمہوریہ وینزویلا کے وزیر خارجہ جناب کارلوس وائڈیا ٹورٹوسا کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان کا یہ حالیہ دورہ جمہوریہ وینزویلا بولیوار کے صدر نکولاس ماڈورو کے گزشتہ سرکاری دورہ قطر میں زیر بحث آنے والے موضوعات کا فالو اپ کرنے کے لیے ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ دونوں امریکوں کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے میں وہ اب تک 3 ملکوں جمہوریہ وینزویلا بولیوار، ریاستہائے متحدہ میکسیکو اور جمہوریہ ڈومینیکن جا چکے ہیں۔
इन मुल्कों में भरपूर मुज़ाकरात हुए हैं और ये दौरा ओपननेस की कतारी डिप्लोमेसी के तामीरी किरदार की अक्कासी कर रहा है। जमहूरिया गिनी बेसाओ के सदर अम्र सिसोका इम्बालो ने जमहूरिया गिनी बेसाओ के लिए कतर के गैर मुकीम सफ़ीर जनाब मोहम्मद कुर्दी अल मिर्री से उनकी असनाद सिफारत वसूल की हैं। सफ़ीर मोहतरम ने साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की जानिब से जमहूरिया गिनी बेसाओ के सदर को खैर सगाली का एक पैगाम पहुँचाया, जिसमें उनकी सेहत व सआदत और जमहूरिया गिनी बेसाओ की मज़ीद तरक्की व खुशहाली की तमन्ना का इजहार किया गया है। जमहूरिया गिनी बेसाओ के सदर ने भी साहिब समू अमीर के लिए खैर सगाली के जज्बात पर मुश्तमिल एक पैगाम सफ़ीर मोहतरम के सुपुर्द किया। कतर में आज बारान रहमत बरसी और दोहा के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। फ़ज़ाई रसदगाहों के इदारे ने मुतनब्बे किया है कि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। तेज़ हवाएं चलेंगी और समंदर में लहरों की बुलंदी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। फ़ज़ाई रसदगाहों के इदारे में पेशगोइयाँ करने के माहिर जनाब अब्दुल्ला अल हद्दाद का कहना है कि अगले चंद घंटों में मज़ीद बारिश हो सकती है। वाज़ेह है कि इलाक़े के मुतादिद मुल्कों में मौसमियाती उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। यमन और ईरान में सैलाब भी आ गए हैं और उनमें जानी नुकसानात भी हुए हैं। सड़कों और कुछ रिहायशी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। इमारात में आज शारिका, अल फुजैरा और रसूल खैमा में मूसलाधार बारिशों के बाद बड़े पैमाने पर सैलाब आ गए, जबकि सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और सल्तनत ओमान की रियासतों शनास, सहम और अर्रिस्ताक में मूसलाधार बारिशें हुई हैं। इराक में मुक्तदा असदर की सदरी तहरीक के हामियों ने बगदाद के ग्रीन एरिया में वाक़े इराक़ी पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया था कि कोऑर्डिनेशन के फ्रेम में मोहम्मद शिया अस-सूदानी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार क्यों बनाया गया। फिर बाद में वो अपना कब्जा ख़त्म करके वहाँ से चले गए कि खुद मुक्तदा असदर ने इस चढ़ाई के 2 घंटे बाद अपने हामियों से कह दिया था कि इस चढ़ाई के जरिए पैगाम पहुंचाया जा चुका है, इसलिए अब इमारत खाली कर दी जाए। इराक़ी सदर बरहम साले ने भी पुरसुकून हो जाने और शिद्दत में इजाफा न करने की अपील की है। तीनुस में इंतखाबात की आज़ाद हाई अथॉरिटी ने इस अथॉरिटी के दीवान के डायरेक्टर को आज माजूल कर देने का फैसला कर लिया कि मुल्क में नए दस्तूर पर कराए जाने वाले रेफरेंडम में वोट डालने वालों की तादाद के बारे में तजाद क्यों सामने आया है। गुज़श्ता पीर के रोज़ कराए जाने वाले इस रेफरेंडम के इस तजाद की वजह से हुकूक इंसानी की तंजीमों और रेफरेंडम की निगरानी करने वाली कुछ तंजीमों की जानिब से बहुत बड़े पैमाने पर तनकीद की गई है। बरतानवी सुराग रसानी ने आज अपने एक इंकशाफ में खैरसून को रूस दोबारा वापस हासिल करने के लिए यूक्रेन के जवाबी हमले के बारे में नई मालूमात दी हैं, जबकि रूस के एक आला एहलकार ने आज एक नया नक्शा जारी कर दिया है जिसमें यूक्रेन की नई सरहदें दिखाई गई हैं। रूसी फौजें मुसलसल खार्किव पर हमले कर रही हैं, जबकि यूक्रेनी फौजों ने शहर खैरसून में वाक़े एक स्ट्रेटेजिक पुल को काट दिया है। वो मुल्क के उन जुनूबी इलाकों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं जिन पर रूस ने जंग के इब्तदाई दिनों में ही कब्जा कर लिया था। चीन ने आज वाशिंगटन को मुतनब्बे किया है कि अगर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया तो उस दौरे के नताइज की तमाम तर जिम्मेदारी वाशिंगटन को उठाना पड़ेगी। ये तंबीह ऐसे वक्त में की गई है जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है। और अब इक़्तिसादियात। कतर डेवलपमेंट फंड ने आज बच्चों और मुसल्लह तनाज़ों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे के दफ्तर के साथ इस दफ्तर के वसाइल की मदद के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं।
इस समझौते की रूह से कतर इस दफ्तर को $1 मिलियन की मदद फराहम करेगा, जबकि कतर इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के एक और नुमाइंदा दफ्तर के क़याम के लिए सरमाया फराहम कर चुका है। कतर स्टॉक एक्सचेंज में आज रिकॉर्ड कारोबार देखने में आया और मार्केट का इंडेक्स 13,000 पॉइंट की बुलंदी क्रॉस कर गया। ट्रांसपोर्ट का शोबा आज कारोबार में सबसे आगे था। आज 29 कंपनियों के शेयर्स यानी हिस्सों में इजाफा हुआ, जबकि 13 कंपनियों के शेयर्स की खरीदारी में कमी देखने में आई। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब स्मुव अमीर ने खादिमुल हरमैन से ताज़ियत का इजहार किया है। साहिब स्मुव अमीर और वेनेज़ुएला के सदर के दरमियान खैर सगाली के पैगामात का तबादला नायब वजीर आज़म वजीर खारजा ने अपने दौरा काराकास के दौरान इन पैगामात का तबादला किया है। कतर में आज कई इलाकों में खूब बादल बरसे और फजाई रसदगाहों के इदारे ने हिफाजती इक़दामात पर जोर दिया है। और इराक़ी सदरी तहरीक के पैरवों ने मोहम्मद अस्सूदानी को वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ एहतजाज करते हुए पार्लियामेंट की इमारत पर कब्जा कर लिया था और फिर वो अपना कब्जा खत्म करके चले गए। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।